Hello everyone, welcome back to my channel. So if you want to score high in this CSIR 2024 or you want to crack it, so this video is only for you. So in this particular video, I will provide the last minute strategy. So this is an last minute strategy video in which you will be able to decide that what should be your strategy in your upcoming CSIR 2024 exam so that you will be able to qualify it, and not with only an ordinary rank but with high score and the rank in between 1 to 100. So if you like my efforts, hit the like button and do subscribe my channel for more such content. So let's start the video. So this video is for all the CSIR 2024 aspirant who wishes to qualify this exam in their very first attempt or in this very attempt. So I will provide the do's and don'ts and also the exact strategy you have to follow that will provide you maximum marks in this exam. So this will be an very much important video, so don't miss it and do watch the video till the end to score more marks in the exam. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी एस्पिरेंट के माइंड में आता है वो ये आता है, विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, आइदर ए, बी और सी. So as per my opinion, you should attempt the C section first because there are so many certain reasons, like it has 75 questions. 75 questions इसमें होते हैं जिनमें से आपको attempt करने हैं 25. So उन 75 में से फर्स्टली यू हैव टू स्कैन दोज 25 क्वेश्चन यू आर फेमिलियर विथ, या जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, आप 100% श्योर हैं. सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? योर स्ट्रैटेजी शुड बी यू शुड अटेम्प्ट द सी सेक्शन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ एनी अदर सेक्शन एज पर माई पर्सनल ओपिनियन. और सेकेंड, इसका ऑब्वियस रीज़न ये भी है कि जो सी सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं दे आर सो लॉन्ग, बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है. सो अगर आप लास्ट आवर्स के लिए इसको बचा के रखेंगे तो लंबे क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा, इफ़ यू विल बी इन हरी यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट प्रॉपरली. एंड अगर आपने क्वेश्चन ही मिस रीड किया है सो ऑप्शन जो आप चूज़ करेंगे उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. सो कूल एंड काम माइंड से जब आप बैठते हैं एग्जाम हॉल में, यू शुड अटेम्प्ट दी सी सेक्शन फर्स्ट एंड उनमें से आप सॉलिड 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन टू दी बी सेक्शन एंड देन ए सेक्शन. सो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? फर्स्टली सी, देन बी एंड देन ए सेक्शन. यहाँ से आप करेक्ट बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करके यू कैन अटेम्प्ट 20 to 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25. एंड अगर आपको नहीं बन रहा है तो नेगेटिव मार्किंग यू हैव टू अवॉइड. यू कैन ऑल्सो सॉल्व 20 to 22 क्वेश्चन बट correct answer. And comparatively the questions of B section are not much lengthy as in C question, so they can also be solved if you have less time. So divide your equal time or sufficient time for the C section and after that for B section and half an hour for the A section. 30 minutes से ज़्यादा इस पे देना is not a good decision because B and C अगर आप properly कर लेंगे so you will be able to qualify. A will only improve your rank and just confirm your selection. So firstly go on to the C section, then B section and then A section. Now a major question, that is which type of MCQ to attempt first or which type of question should we attempt first. So firstly attempt the matching type question because they are very much ईजी, दे आर ऑब्वियस कि ये अगर एक दो करेक्ट, एक ऑप्शन भी आपको पता है, ये दो लेट्स से दो ऑप्शन भी आपको करेक्ट पता है तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप बिल्कुल अलग से एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं. सो इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा होती है. 100% ये श्योर हो जाएगा कि आपने सही अटेम्प्ट किया है. सो फर्स्ट सीक्वेंस शुड बी, पूरे क्वेश्चन स्कैन कर लीजिए फटाफट से क्लिक कर करके और सॉल्व कीजिए जितने भी मैचिंग क्वेश्चन हैं. Firstly, you have to solve the matching question. And after that, you should solve the combination based question. मैंने अपने जितने भी सेशंस लिए हैं CSIR रैपिड रिविजन के, I have already provided what should be your strategies to solve combination based question. यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर देती हूँ. सो कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें A and
B, B and C, C and D and D and A. सो अगर आपके स्टेटमेंट में A, B में कुछ लिखा है, C में कुछ लिखा है, D में कुछ लगा है एंड आपको पता है कि C और D जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, C एंड D जो ऑप्शन जो भी लिखा हुआ है जिस भी क्वेश्चन में वो रॉन्ग है. सो C एंड D जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ में उसको एलिमिनेट कर लीजिए. जैसे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए एंड ओनली इन जस्ट अ सिंगल मिनट. सो अप्लाई दिस ट्रिक टू सॉल्व दी कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते हैं. अगर हम मैच दी फॉलोइंग की बात करें, यू कैन गेट अबाउट 5 to 6 मैचिंग एंड इवन मोर देन दैट. सो मैचिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा. लेट्स से अगर आपने 6 मैचिंग क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए तो 6 into 4 24 मार्क्स तो आपने ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं. सो धीरे धीरे जैसे आप करेक्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे, योर कॉन्फिडेंस विल बी बूस्ट अप एंड नर्वसनेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन भी 6 to 7 आता ही है, तो उसमें से और 24 मार्क्स आ जाएंगे. सो 48 to 50 मार्क्स तो आपने ऐसे ही स्कोर कर लिया पेपर आधा सॉल्व करके ही. सो कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को पकड़िए एंड उसका करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उसको एलिमिनेट कीजिए. सो सेकेंड आपको अटेम्प्ट करना है कॉम्बिनेशन बेस्ड. एंड थर्ड में आप जाइए जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से एक्सपेरिमेंटल टाइप के, जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं एंड सिंगल ऑप्शन उसका करेक्ट होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. स्टेटमेंट बेस्ड जो होते हैं लॉन्ग. एंड इसके अलावा आप फोर्थ में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बेस्ड में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं उसको डिकोड करने में. सो आई विल सजेस्ट कि उसको लास्ट में कीजिए. एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन को थर्ड सीक्वेंस दीजिए बिकॉज वो ईजी होते हैं, थोड़ा सा ही डिकोडिंग करना होता है. या फिर अगर आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छे हैं या आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, सो यू कैन ऑल्सो स्विच इन बिटवीन दिस. ये आप स्विच कर सकते हैं, या तो आप फोर्थ वाला पहले कर लीजिए, इसको बाद में कीजिए. अगर ग्राफ आपको पता है, बहुत सारे जो ग्राफ हैं, अगर आप उसको एलिमिनेट करके समझ जाते हैं कि किस टाइप का होना चाहिए, सो आई विल सजेस्ट कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. नाउ डूज एंड डोंट्स ऑफ टू कंफर्म योर सिलेक्शन इन CSIR 2024. सो सबसे पहला डोंट आता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में उसको मिसरीड ना करें. डोंट मिसरीड. किस टाइप के कीवर्ड्स? सो कीवर्ड्स लाइक क्वेश्चन में कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, कभी कभी पूछेगा करेक्ट, कभी पूछेगा ट्रू, कभी पूछेगा नॉट करेक्ट. सो इस टाइप के जो ऑड कीवर्ड्स होते हैं आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया. आप उसको 2 से 3 बार कंफर्म कीजिए, मिसरीड मत कीजिए, अच्छे से शांति से उसको देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि ऑप्शन का सिलेक्शन जो है वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा. सो फोकस ऑन द कीवर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट रश टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आप हरी में रहेंगे, बहुत रश करेंगे कि मुझे बहुत सारा अटेम्प्ट करना है, आई हैव टू अटेम्प्ट सो मेनी क्वेश्चन, सो आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, इनकरेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और बिना प्रॉपरली रीड किए आप क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी इनकरेक्ट पिक करेंगे. सो डोंट हरी, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे एक बार कंफर्म कर लीजिए एंड ऑप्शंस को टिक कीजिए. एंड इसके अलावा जो आपको नहीं करना है, जो मेजर फॉल्ट है, बहुत सारा अटेम्प्ट कर लेना. अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड यू हैव टू अटेम्प्ट दी फिक्स्ड बट दी 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के थ्रू आपको जो परसेंटाइल है वो बहुत डिक्रीज हो सकता है. सो रिमेंबर इट कि बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से बहुत सारे मार्क्स नहीं आते हैं. इंस्टेड आपको करेक्ट क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को पकड़ना है. जैसे C सेक्शन से अगर आपने 20 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिया या 22 कर लिया, तो यहाँ से ही आपके मार्क्स, जैसे 80 मार्क्स यहाँ से आ गया, 22 किया तो 88 आ गया, 88 मार्क्स तो यहीं से आ गया. और अगर आप B सेक्शन से 50 क्वेश्चंस जो करने रहते हैं उसमें से अगर आपने 25 भी किया सही, तो 50 मार्क्स तो यहाँ से आ गए. 50 + 80 आपको और कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? आप 2-3 क्वेश्चन सही A में भी तो करेंगे. सो डोंट रश कि सारे ही सारे अटेम्प्ट करने हैं. B सेक्शन में बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पूरे 50 अटेम्प्ट कर लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं बनता है. तो जितना बनता है 10 ही बनता है, 10 ही अटेम्प्ट कीजिए, 15 कीजिए, बट क्या फ़ायदा ऐसे अटेम्प्ट का जो आप गेन कर रहे हो वो भी आपको लॉस हो जाए. सो डोंट डू इट. सो ऑल दीज पॉइंटर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट
These are the last minute strategy. Save your time. This is the ultimate my tip. Save your time. टाइम कैसे सेव होगा? क्वेश्चन कोई भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ने से ही पता, एक लाइन दो लाइन पढ़ने से ही समझ आ जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो डायरेक्टली आप इनकरेक्ट ऑप्शंस को चूज़ कर लीजिए. सो पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती. मैच दी फॉलोइंग में पूरे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप 2 ऑप्शन पिक करके करेक्ट ऑप्शन निकाल दीजिए. ये सारा अगर आप टाइम सेव करेंगे तो सी सेक्शन के करेक्ट 25 को आप चूज़ कर पाएंगे जल्दी से, एंड आप बी सेक्शन को भी इक्वल टाइम दे पाएंगे एंड ए सेक्शन को भी सॉल्व करने का टाइम आपको इक्वल ही मिलेगा. सो ऑल दिस टिप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ट्राई दिस and all the very best for your exam. So follow all these tips, and if you like my efforts and this video, hit the like button because this motivates me, and thank you so much for watching.